Good morning, students. Am I audible, everyone? Yes, ma'am. Okay. Whether the previous lecture is over or not? Yes, thank you, Mandar. It's 10:30 by my watch. Yes, ma'am, it is over. It's over now? Okay. So let us start. We already waited for 5 minutes. Let me share the screen with you all. There is almost 5 days gap. What we started in last session was the Z transform, and after that we are having almost 5 days gap. So let me just refresh, brush up all the things, and we'll go for the further part. And let me record this. Yeah. Okay. So we were dealing with the Z transformation, and Z transformation is all about to find out solution of such discrete functions which are not solvable in the time domain. Means अगर box A में हमारा function simplify नहीं हो रहा है, we take into the box B, we solve that and we take back to the box A. So this is the transformation from time domain to frequency domain, from frequency domain to time domain. Okay. Okay, so it was determined with the help of this particular formula. Z transform of sequence f of k is equal to summation from minus infinity to plus infinity f of k into z raised to power minus k. And this is a single term which represents the complex part of the entire function. So हमारा यहाँ पर फंक्शन जो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है वो यहाँ पर जाके सिर्फ कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है. Right, and we are finding out the region of convergence over here. So Z transformation of f of k is shown with this particular symbol also. And if the function is defined from 0 to infinity, in that case the Z transformation is carried out for k is equal to 0 to infinity in this way. All right, I'll just rub this. And further, its Z inverse is determined as Z inverse of f of z, which we are going to get back as f of k again. Then few properties that day we have started. Z transformation of a times f of k plus b times g of k can be written as a times z transformation of f of k plus b times z transformation of g of z. This is called as the linearity property of the Z transformation. Then this shifting property for regular sequence and for Cauchy sequence, we are going to discuss at the time of the difference equation. Later on, these applications or properties I explained you orally, but we haven't solved any problem on the same except this division by k. So multiplication by k, division by k, multiplication by exponential term like these, how what impact on Z transformation of such a function we are going to get, that we are studying with the help of these properties. And with the help of that, we could solve few properties further. Also, this initial value problem and boundary value problem, initial value theorem and final value theorem is essential if we have been given any difference equation with the boundary condition. So this particular two things also are essential for the difference equation. So I will take you to this while dealing with the difference equation. Okay. Right now, whatever 3-4 properties I explained earlier, will go for it. Division by k. This problem we explained in last session. We'll try to solve few more problems of this particular kind. Now, I explained you for this problem also, as we are here to find out Z transformation of function f of k, which is 2 raised to power k upon k. So Z transformation of f of k, if we are knowing, then
division by power of k to this f of k is very easy to find out. So this is stands for integration z to infinity z raised to power minus 1 into f of z. Now this f of z is z transformation of this f of k. इस f of k का z ट्रांसफॉर्मेशन है. अगर हम k से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें z ट्रांसफॉर्मेशन जो मिलेगा उसका सिंप्लीफिकेशन इस फॉर्मूला के साथ हो सकता है. राइट नाउ ओवर हियर this f of k is a standard sequence for which f of z is standard z transformation that we know. Now f of k हमें इस प्रॉब्लम के लिए देके रखा है 2 raised to power k, but it is defined for k greater than or equal to 1, and we have standard function 2 raised to power k, or rather a raised to power k, defined for k greater than or equal to 0, not for k greater than or equal to 1. And that's why for such type of problem, we need to find out its z transformation by basic formula. What we did here. So z transformation of f of k means z transformation of this term we will find out first by finding out the z transformation of 2 raised to power k. अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर इस 2 raised to power k का z transformation as a standard formula मुझे पता होता तो मैं straight way यहाँ पर यूज करती. So my steps will get reduced. But now for k greater than or equal to 0 के लिए हमें ये प्रॉब्लम नहीं दिया है. We have been given for k greater than or equal to 1. So that's why z transformation can be determined by the definition. Right? But over here instead of using definition directly, एक थोड़ा सा अलग स्टेप यूज किया है. Z transformation of k greater than or equal to 0 we know, which is written as summation k is equal to 0 to infinity 2 raised to power k z raised to power minus k is equal to z upon z minus 2. So this is your standard formula, but it is defined for k greater than or equal to 0. So how to get for k greater than or equal to 1? We just separate out this summation into two parts. One for k greater than k is equal to 0, and second for k greater than or equal to 1. And we want z transformation of this particular function. So this one will take to the right hand side and will simplify. So that gives us z upon z minus 2 minus 1. So that appears to be z minus z minus minus plus 2 divided by z minus 2. So this will get cancelled and I'll get this is 2 upon z minus 2. So now change, see the change. This function and this function entirely different. And now we can proceed with this function to solve our further problem. So z transformation of 2 raised to power k for k greater than or equal to 1 is defined in this way. And this we can use to solve the z transformation of 2 raised to power k by k. Now apply the formula of the property z raised to power minus 1 into 2 upon z minus 2 into dz. So we are having 2 upon z into z minus 2, where partial fraction we need to apply, right? And by applying partial fraction we will be getting this term. This is a upon z minus 2 minus b upon z minus b upon z, right? So a and b की values find out करके ये partial fraction का simplification directly यहाँ पर noted है. I guess I explained you this part also कि ये partial fraction कैसे आया था. For k greater than or equal to 1 we are taking, and mod z greater than 2, that comes out to be for this particular result solve करने पर. Now z transformation of 2 raised to power k upon k is equal to log of z minus 2 for this term, right, minus log of 1 upon z. So we are taking integration of both of these terms varying from z to infinity. But over here, if I substitute this is infinity, this is also infinity, that gives me indeterminate form as infinity minus infinity, which cannot be solved further. So to simplify this, we can apply the formula log of a minus log of b as log a by b. So applying in that sense, this is log of z minus 2 upon z. Now simplify this a little. This is log of 1 minus 2 by z. And now apply your upper and lower limits. So applying upper and lower limits, this is z to infinity. I'll be getting log of
1 minus 2 upon infinity is 0 minus lower limit का minus sign log of this is 1 minus 2 by z as it is. Now this is log 1 we are having which is 0 minus log of z minus 2 by cross multiplying upon z. And now simplify this. So I'll be getting this is log of z minus log of z minus 2. So this part is crucial because the logarithmic term for infinity or for minus infinity gives you infinity and minus infinity. So please remember that and do this important part while solving the problem. So z transformation of 2 raised to power k upon k is equal to log of z upon z minus 2 we will be getting for this condition k greater than or equal to 1, and in box B we will be having this function will be true if that values of z are greater than mod 2. So this exterior region of the circle whose radius is 2 we are having. All right. Yes. So this is the region here we have given. I guess that this particular PPT I already uploaded. Go through it for your practice. Third, linearity property, which is this one. Now this is very important property in terms of MCQs. So carefully try to understand this particular property. It's very easy, लेकिन MCQs के लिए इस property को लेके बहुत सारे problems बन सकते हैं. All right. Okay. So I'll solve this problem on journal instead of explaining you over here. So I will be having. Wait a minute. Yes. I will be having function f of k is equal to 3 raised to, what was that? Sine of 3k plus 4. Okay. Sine of 3k plus 4 for k greater than or equal to 0. Right? It's z transform we have to find out. Now, this is like f of k is equal to a into f of k, right, plus b into g of k, isn't it? How? This is sine of 3k plus 4. See, we have standard formula for sine of ak only, not for sine of ak plus b. Am I right? So can we convert this particular term in terms of a into b plus b into c? A into certain term f of k plus b into certain term, another term of k. Can anybody tell me? The expansion of sine of, this is like sine of a plus b. What is the expansion? Anybody? Am I audible? Yes, ma'am. Sin A into cos B plus cos A Cos A into into sin sin B. Okay, this is right. Secondly, is it correct? B. Yes, ma'am. Okay, so can I term this as f of k and this as a? It's a constant term, cos 4, right? Plus this is g of k and this is b. Sin of 4 is again a constant term. Correct? Okay, so Yes, now ma'am. let me put down this particular term as this is f of k, which is equal to this is sine of 3k plus 4, right, is equal to cos 4 into sine of 3k plus sine 4 into cos of 3k. Correct? So by our property, z transformation of f of k now can be written as this is z transformation of 3k plus 4 as cos 4 into z transformation of sine of 3k, right, plus sine 4 into z transformation of cos of 3k. And now my question is, do we have z transformation of this function and this function? Standard Yes, ma'am. formula.
Can I apply this? Yes or no? Yes, ma'am. Yeah. Yes. So tell me the formula for the sine of 3k. So Z transformation of sine of 3k is. Anybody? Now, obviously, this entire problem will go for k greater than or equal to 0. Yes. So this is z into sine of 3 डिनोमिनेटर में z स्क्वायर माइनस एनीबडी 2z 2z into cos 3. cos 3 plus 1, right? Plus 1. Then over here, this is z transformation of cos of 3k. Z into z minus cos 3. See the variation. Denominator is same. Z square minus 2z into cos of 3 plus 1. तो वेरिएशन कहां पर है? न्यूमरेटर में है सिर्फ. ओके. एंड अगर मैंने यहां पर हाइपरबोलिक जोड़ दिया तो वेरिएशन कहां पर है? सिर्फ यहां पर. तो जहां जहां पर साइन या कॉस की टर्म है वहां पर मुझे हाइपरबोलिक की टर्म जोड़ देनी है. दैट्स इट. तो आपके 4 फॉर्मूलेज यहाँ पर इजीली याद हो जाएंगे आपको. ऑलराइट. So don't forget to remember all of these 4 formulas for the same. Just erase that hyperbolic term from all. So ये formulas मुझे यहाँ पर put up करने. So I'll just put down that this is z transformation of given function f of k is now equal to this is cos of 4 into z into sine of 3 upon. Remember this entire problem will be asked for just 2 marks in MCQs. And problem is not at all difficult. Plus this is sine of 4. मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं. Okay. Sine of 4 into z into this is z minus cos of 3 divided by z square minus 2z into cos of 3 plus 1. Is that right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मैंने जैसे बोला था कि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं? हम बहुत सारे वेरिएशंस यहाँ पर सोच सकते हैं. हाउ? लेट मी एक्सप्लेन. एक ही मिनट. What kind of variation will be there? दिस इज साइन ऑफ ए के प्लस बी. तो ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. राइट. एग्जाम्पल साइन ऑफ पाई के प्लस 2. राइट. तो यहां पर आप सोचोगे सो ए की वैल्यू क्या है? पाई. 3 की जगह क्या आ जाएगा? पाई. एंड 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2. लेट अस चेक आउट द वेरिएशन. 3 की जगह क्या आ जाएगा? पाई. व्हाट इज साइन पाई? 0. तो फर्स्ट टर्म आपकी 0 बन रही है. व्हाट इज कॉस पाई? -1. -1. तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा. गेटिंग इट? Yes, ma'am. सेकंड वेरिएशन यहाँ पर भी ये कॉस ऑफ पाई आ जाएगा तो -1. तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1. ये किसका स्क्वायर है? z प्लस 1 का. ओके. लेट मी राइट डाउन. दिस इज z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ पाई के प्लस 2. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? 4 की जगह 2 एंड 3 की जगह पाई. सो दिस इज साइन ऑफ कॉस ऑफ 2 इनटू z साइन ऑफ पाई अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ पाई प्लस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 z. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी MT एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में MCQs पैटर्न में ही होने वाली है. cos of pi plus 1. ठीक है. एंड फॉर 3 यूनिट्स वी आर रीडिंग फॉर द सेम पर्पस. यहाँ पे प्लस साइन. सॉरी, ये प्लस साइन. या नाउ cos of 2 and this is sin of 2 will remain as it is. Sin of pi क्या है?
दिस इज 0। कॉस ऑफ पाई क्या है, ये है -1, तो यहां पर भी -1 आ जाएगा, यहां पर भी -1 आ जाएगा। Am I right? तो आपका सिंप्लीफिकेशन कैसे हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ 2 इंटू 0 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू, क्यों 0, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है तो पूरी टर्म 0 ही बन जाएगी, राइट। देन यहां पर z इंटू z माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय z² माइनस 2z इंटू -1, तो ये +1 हो जाएगा, यहां पर +1। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये डिनोमिनेटर किसका स्क्वायर है, z plus 1 whole square. यस दिस इज z प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से एक z कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही z प्लस 1 बचेगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, sin 2 इंटू z अपॉन z प्लस 1। इतना सिंपल आंसर आ रहा है, किसका, इस टर्म का। एंड अगर आपको फॉर्मूलीज पता है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में सॉल्व हो सकती है, right? And it will be asked in the MCQs just for 2 marks, not more than that. Probably 1 mark के लिए भी पूछी जा सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। So this is the further variation what I told you. अब और कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं यहाँ पर, तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है। एक प्रॉब्लम अपने अच्छे से सॉल्व करके देखा तो आपको बाकी प्रॉब्लम आ जाएंगे। सेकंड वेरिएशन क्या हो सकता है, साइन की जगह क्या आ सकता है, कॉस, राइट। और क्या वेरिएशन हो सकता है, साइन एंड कॉस की जगह साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए के प्लस बी एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए के प्लस बी। तो यहां पर भी ए की एंड बी की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है जो सिंप्लीफाई हो पाए। गेटिंग मी एवरीवन? तो ये वाला पैटर्न हम बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप बाकी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अनदर पार्ट यहां पर मैं और एक बता रही हूँ। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज किसके लिए पढ़े हैं, साइन ऑफ ए के लिए, ठीक है। देन यहां पर कॉस ऑफ ए के लिए, अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पर अगर a की वैल्यू मैंने पाई रखी, राइट, तो साइन ऑफ पाई इसका जो भी फॉर्मूला होगा वो पूरा 0 आएगा। अगर मैंने यहाँ पर a को पाई रखा तो यहाँ से मुझे z का कोई फंक्शन मिलेगा। अगर सिमिलर वे में यहाँ पर मैंने a की वैल्यू π/2 दी तो यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ z मिलेगा। z ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ, अगर a की वैल्यू ऐसी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, अगर a इक्वल टू π/2 रखा तो cos ऑफ π/2 जहां जहां पर आएगा वो वैल्यू 0 होगी, लेकिन आपका z ट्रांसफॉर्मेशन 0 नहीं बनेगा, हमारे। तो ये वेरिएशंस भी यहाँ पर आ सकते हैं a की वैल्यू पर बेस्ड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड वी नो दैट साइन एंड cos दीज टू फंक्शंस आर बाउंडेड फंक्शंस। तो उसकी जो z ट्रांसफॉर्मेशन है वो उस वे में आएगी जहां जहां पर a की वजह से cos 0 बन जाता है या sin 0 बन जाता है, वहां पर आपके z ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, सो दीज आर द वेरिएशंस इन द प्रॉब्लम। यहाँ पर भी ऊपर वाला जो पार्ट हमने ये सॉल्व किया था ना, वहां पर भी वेरिएशंस क्या क्या आ सकते हैं मैं बताती हूँ। अब f ऑफ k यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर k आ गया, अनदर क्या आ सकता है साइन ऑफ ak, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है e रेज़ टू पावर ak। तो फंक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उस पर आप वेरिएशंस लगा के देख सकते हो। So that's about the linearity property, and now we'll go for the next property, multiplication by a raised to power k. तो हम किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन को अगर a raised to power k से मल्टीप्लाई करते हैं and we know the z transformation of f of k as f of z. So ये अगर f of k आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है एंड जिसका z ट्रांसफॉर्मेशन हमें नोन है, तो अगर मैं इस स्टैंडर्ड फंक्शन को a रेज़ टू पावर k से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा z ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, दिस प्रॉपर्टी टॉक्स अबाउट द सेम। कैसे आएगा ये, तो आपके f ऑफ z में z को सिर्फ रिप्लेस करना है, z को रिप्लेस करना है z बाय a से, दैट्स इट, इतनी ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप अ सिंपल प्रॉपर्टी, साइन ऑफ 2k प्लस 3, this is like sin of ak plus b,
मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर k। आई एम सॉरी। अब ये जो फंक्शन है ना साइन ऑफ 2k प्लस 3, इसका z ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन आपको पता है क्या? नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हो कि क्विकली, यस वी कैन डू दैट, राइट। तो इस फंक्शन के z ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस क्या होंगे? अगर मैं 4k से अप्लाई करती हूँ f ऑफ k, तो यहाँ पर जो भी z होगा इसके z ट्रांसफॉर्मेशन में जहां पर भी z होगा वो रिप्लेस हो जाएगा z अपॉन 4 से। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसे। दिस इज z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a रेज टू पावर ak कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। सो हम हमारा f ऑफ z ढूंढने की कोशिश करते हैं, z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस f ऑफ k। सो ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 3 इंटू साइन ऑफ 2k प्लस साइन 3 इंटू कॉस ऑफ 2k। सो दिस इज लाइक a इंटू साइन f ऑफ k प्लस b इंटू g ऑफ k। तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, cos 3 हट गया मीन्स कांस्टेंट एज अ बाहर आ गया, तो z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 2k, यहाँ पर z बचा है, z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 2k प्लस साइन 3 इंटू z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ 2k। तो ये हमने लिख दिया z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 2k, z इंटू साइन 2 अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos 2 प्लस 1, यहाँ पर साइन 3 z इंटू z माइनस cos 2 अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z इंटू cos 2 प्लस 1। आ गया हमारा स्टैंडर्ड z ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का। अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पर 2 स्टेप्स में ये सिंप्लीफिकेशन करके दिया है। क्या हो सकता है सिंप्लीफिकेशन? ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सो न्यूमरेटर से सॉरी, यहाँ पर z स्क्वायर है, यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो z कॉमन ले लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म में बचेगा cos 3 sin 2 माइनस सेकंड टर्म में बचेगा यहाँ पर cos 3 cos 2 प्लस z टाइम्स, यहाँ से एक z बाहर लिया तो ये z इंटू साइन ऑफ 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इन दोनों टर्म्स को आप मिला सकते हो, जोड़ सकते हो। दिस इज लाइक साइन a इंटू कॉस b प्लस माइनस cos a into sin b. I'll repeat. This is sin a into cos b minus cos a into sin b. So what is the formula for the sin? This is sin of a minus b. Am I right? So this is sin of 2 minus 3, that is sin of minus 1. Am I correct? Minus sin of 1. राइट, तो इसे सिंप्लीफाई किया है। दिस इज माइनस साइन 1 इस पूरी टर्म को प्लस z इंटू साइन 3 एज इट इज। तो आपका जो डिटरमिनेंट f ऑफ z है ना, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने यहाँ पर। अब इस पर लगाते हैं 4 रेज टू k का मल्टीप्लीकेशन। साइन ऑफ 3k साइन ऑफ 2k प्लस 3 को अगर 4 रेज टू k से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे टर्म का z ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट z ट्रांसफॉर्म subjected to the change from z to z by 4। तो f of z by 4 हमें फाइंड आउट करना है। सो सब्सटीट्यूट हियर एवरीवेयर और रिप्लेस एवरीवेयर z by z upon 4। So this is z upon 4 into minus sin 1 into minus sin 1 plus z by 4 into sin 3 divided by z by 4 bracket square minus 2 times z by 4 into cos 2 plus 1। Now cross multiply this. So this is z into z sin 3 minus 4 times sin 1 upon z square minus 8z cos 2 plus 16। Cross multiply करके simplify किया। So that's our final z transformation। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट है कुछ? Let's check। ओके, अगर नहीं है तो हम इस प्रॉपर्टी की तरफ चल सकते हैं। वैसे ये प्रॉपर्टी अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रायरली? दिस इज द z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a रेज टू पावर k इनटू f ऑफ k। अगर है तो हमें मिलता है
एफ ऑफ z बाय a, ये सिंप्लीफिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी इससे कोरिलेट करती है। कैसे? a रेज टू पावर k के बजाय हमें यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस a k ऐसे मिला है। Am I right? तो e रेज टू पावर माइनस a k इंटू एफ ऑफ k को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज e रेज टू पावर माइनस a रेज टू k इंटू एफ ऑफ k। Am I right? So this is just like, ये जो वाली टर्म है ना वो हमारे इस टर्म के साथ मैच कर रही है, सम कांस्टेंट रेज टू k, सम कांस्टेंट रेज टू k। तो हमारा z ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा? z अपॉन e रेज टू पावर माइनस a, दैट इज z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज टू पावर a टाइम्स z। ये करेक्ट? तो ये प्रॉपर्टी अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि e रेज टू पावर माइनस a k को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। ठीक है? ओके, यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट प्रॉब्लम, f of k is equal to e raised to power minus ak into sine of bk. Every time observe that k is greater than or equal to 0 or not. अगर ये k greater than or equal to 1 या k greater than or equal to 2 या k greater than or equal to 3 दिया है तो मुझे पहले तो z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा अलग से, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, इसीलिए हमने पहले क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड z ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिए, सो दैट प्रॉपर्टीज अप्लाई करते वक्त हमें कुछ स्टैंडर्ड z ट्रांसफॉर्मेशंस पता हो। ओके, सो अब साइन ऑफ बी के, इस पूरे फंक्शन में से साइन ऑफ बी के का z ट्रांसफॉर्मेशन में इमीडिएटली लिख सकती हूँ, z इंटू साइन बी अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z इंटू कॉस बी प्लस 1 फॉर z ग्रेटर देन 1। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्मूला। अब इस z ट्रांसफॉर्म को हमें या f ऑफ k को हमें मल्टीप्लाई करना है e रेज टू पावर माइनस a k से। ठीक है, तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज f ऑफ z अपॉन e रेज टू पावर माइनस a, दैट इज f ऑफ e रेज टू पावर a टाइम्स z। सो जहां जहां पर z है उसे रिप्लेस करना है e रेज टू पावर a इंटू z से। सो z इज रिप्लेस्ड बाय e रेज टू पावर a इंटू z, यहां पर भी और यहां पर भी z इज रिप्लेस्ड बाय e रेज टू पावर a टाइम्स z। हो गया हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, एंड द लास्ट बिफोर वी गो फॉर z डिफरेंस इक्वेशन, शायद ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी होगी z ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स एंड देन इनवर्स z ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी आपका सीक्वेंस है जिसका z ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है। इन दैट केस अगर f ऑफ k को हम किसी k से मल्टीप्लाई करते हैं k की पावर से, इन दैट केस जो बॉक्स a में फंक्शन है तो बॉक्स a में हम f ऑफ k को अगर k रेज टू पावर n से k की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस f ऑफ k का जो z ट्रांसफॉर्म यहाँ पर है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम प्रॉपर्टी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो ये f ऑफ z जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है इस चेंज को, माइनस z अपॉन d बाय माइनस z इंटू d बाय डी जेड ब्रैकेट रेज टू n ऑपरेटर ऑन f ऑफ z। अब ये जो ब्रैकेट है ये ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, राइट। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो f ऑफ k को हमने k की पावर से डिवाइड किया तो ये जा रहा है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रेशन विद समथिंग इनटू dz वेरिंग फ्रॉम समथिंग टू समथिंग। ठीक है, एंड अगर मैं f ऑफ k को k की पावर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये जा रहा है डेरिवेटिव के फॉर्म में f ऑफ कैपिटल F ऑफ z। तो डिवाइड कर रहे हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो k की nth पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेरिवेटिव की भी nth पावर आ जाएगी, यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगी, पावर ही नॉट ऑर्डर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, सो प्लीज रिकॉग्नाइज दैट। दिस इज माइनस z d by dz ब्रैकेट रेज टू n ऑपरेटेड सिक्वेंशियली ऑन f of z।
ओके, तो माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड ब्रैकेट स्क्वायर, ये हमें कैसे अप्लाई करना है? दिस इज माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड operated again with minus z into d by dz of f of z. So don't please write down this as z square into d2 by d2 by dz square. ऐसे मत लिख देना इसे, ये सिक्वेंशियली आपको अप्लाई करना है, ठीक है? ओके, तो ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम. लेट मी जस्ट चेक आउट कि इस प्रॉपर्टी के बाद कोई प्रॉपर्टी है क्या. अच्छा, ये ही प्रॉपर्टी के वेरिएशंस हम यहाँ पर ले रहे हैं. ओके, के प्लस 1 के स्क्वायर, सिर्फ के स्क्वायर. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. देन कन्वोल्यूशन एंड I guess we end up with problem solving on inverse Z transformation, and then we'll start with the inverse Z transformation. Fine. So ये property मैं explain करती हूँ, and we will be continuing the problem solving on this property in our tutor session. Wait a minute. हाँ, पहले थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. चलो इसे जर्नल पर सॉल्व करते हैं. f of k is given as k into 3 raised to power k for k greater than or equal to 0. वहां पर 5 raised to k दिया है शायद, यहाँ पर 3 raised to power k के साथ स्टार्ट करते हैं. वेरिएशन सिर्फ इतना हो सकता है अगर सिर्फ k की सिंगल पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो. सो नाउ f of k is equal to 3 raised to power k. या मैं डायरेक्टली इसे ऐसे लिखती हूँ, z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 raised to power k. ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका z ट्रांसफॉर्म हमें पता है. कैन यू जस्ट नेम इट, टेल मी व्हाट इज दिस z ट्रांसफॉर्मेशन इज. z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a raised to power k, ये हमें याद रखना है. Am I audible, everyone, properly? I thought I disconnected. Okay, yeah. Z transform of a raised to power k is equal to, if k is greater than or equal to 0. This is a standard formula, z upon z minus a. तो इसका z ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? z अपॉन z माइनस 3. Am I right? For mod z greater than 3. Am I correct? Into. Now, how to write down the z transform? By the formula, this is minus z into d by dz operated on 3 raised to power k का z transformation, z transform of 3 raised to power k. So this is minus z into d by dz. Everybody please differentiate the z and 3 over here. So this is 3 raised to power k का z transformation means z upon z minus 3. ठीक है? Okay. Now keep that minus z as it is. First derivative of z upon z minus 3. Now observe that your derivative function of z is in terms of u by v. So u by v rule of differentiation we have to apply here carefully. Minus z as it is into your v as it is, derivative of z, minus u as it is, derivative of v, it's 1, divided by v का square. Am I correct? ये derivative सही है? Yes, ma'am. Okay, now this is equal to minus z into z minus 3 minus z. So minus z plus z will get 0.
दिस इज -3 अपॉन z -3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड दैट्स इट. सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 टाइम्स z अपॉन z -3 ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये हो गया आपका z ट्रांसफॉर्म ऑफ k टाइम्स 3 रेज टू पावर k. ऑलराइट. अगर आपकी a की 3 की जगह कोई भी वैल्यू दी जाए तो आपका z ट्रांसफॉर्मेशन इसी पैटर्न में आएगा. सो वट एवर आर द वेरिएशन, ये एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद रख सकते हो. वैसे ये प्रॉब्लम है एंड इफ इन थ्योरी एग्जाम इट विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स मैक्स. एंड अगर एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो आपको सिंप्लीफिकेशन दिया जाएगा. मीन्स क्या दिया जाएगा मैं बताती हूँ. एमसीक्यूज में आपको ये टर्म दी जाएगी. अगर आपको ये पूछा है तो आपको ये टर्म दी जाएगी एंड सिर्फ आपको क्या करना है, ये एक सिंगल डेरिवेटिव अप्लाई करके आपका फाइनल आंसर ये दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है. सो प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स योर. गॉट दिस प्रॉब्लम? यहाँ पर किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके. सो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 है तो 5 में चेंज किया हुआ है 3z अपॉन z -3 का स्क्वायर. सो 3 की जगह 5 आ गया. ऑब्वियसली मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 5. बहुत कुछ वेरिएशंस यहाँ पर नहीं हो सकता. कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब क्या कर रहे हैं हम, k+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स है ना इस प्रॉपर्टी के, वो वेरिएशंस कहाँ पर होते हैं मैं बताती हूँ. f ऑफ k आपका स्टैंडर्ड फंक्शन रहेगा सपोज, ठीक है. तो z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ k इनटू यहाँ पर क्या आ सकता है, k की पावर आ सकती है स्ट्रेट वे, या k+1 से मल्टीप्लाई किया जाता है f ऑफ k को, या फिर k+a मैं लिख देती हूँ. k+a का स्क्वायर हो सकता है या k+n की डिफरेंट पावर्स हो सकती है. Am I right? या फिर k इंटू k+1 इस टाइप की टर्म हो सकती है. इतना ही वेरिएशन पॉसिबल है. लेकिन ये सारे वेरिएशंस इस प्रॉपर्टी के आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स दे रहे हैं. सो केयरफुली ट्राई आउट ऑल द वेरिएशंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी. सो फॉर दैट सेक आई विल राइट डाउन दिस एज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर दिस सेक्शन. k+1 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या चेंज होगा, राइट. k+1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज k into a raised to power k plus a raised to power k. So I have to separate out the terms z transformation. So this stands for z transformation of k times a raised to power k plus z transformation of ak. ये तो आपकी स्टैंडर्ड टर्म है, तो इसका तो z ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएटली निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. करेक्ट? इज दैट पार्ट इज क्लियर? ओके, ये प्रॉब्लम हमें करना है. मैं सिर्फ वेरिएशंस के लिए आपको दूसरा प्रॉब्लम दिखा रही हूँ. अब मुझे मल्टीप्लाई करना है k स्क्वायर से. k स्क्वायर अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं, दिस इज k रेज टू 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा. मीन्स ये पावर ऑपरेटर की मुझे सिक्वेंशियली यहाँ पर अप्लाई करनी है. दैट इज द ओनली मीनिंग. सो पहले हम यहाँ पर सिक्वेंशियली वी आर अप्लाइंग दिस टर्म और ऑपरेटर ऑन दिस फंक्शन. सो पहले -z into d by dz को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं एंड देन वी आर अप्लाइंग विद दिस प्रॉपर्टी. सो ये सिक्वेंशियली अप्लाई करनी है. सिर्फ यहाँ पर सिर्फ k स्क्वायर दिया है. अब k स्क्वायर दिया है मीन्स इसका जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है मैं 1 रख सकती हूँ. दिस कैन बी रिटन एज k स्क्वायर इंटू 1. ऑलराइट, एंड 1 इज स्टैंडर्ड f ऑफ k. ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है जिसका z ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं, राइट. हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था u ऑफ k जो 1 है फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 है फॉर k ग्रेटर लेस देन 0. Am I right? तो इस फंक्शन के लिए जहां पर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मैं ये 1 uk पर मैप कर सकती हूँ. इसका स्टैंडर्ड z ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास है. क्या है फिर ये, तो ये यूज करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे. नोट इट? ओके, तो इतने वेरिएशंस है हमारे इस प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय k रेज टू पावर n के लिए.
अब ये पावर कितनी भी लो, जितनी पावर आप बढ़ाओगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा एंड उतना ज्यादा लेंथी प्रॉब्लम आपका होगा. सो फॉर एग्जाम पर्पस अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन एंड ऑल, तो आपको k से मल्टीप्लाई करके या k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके या k इंटू k प्लस a से मल्टीप्लाई करके, या और क्या वेरिएशन हो सकता है, k स्क्वायर इंटू एफ ऑफ k से मल्टीप्लाई करके. इतने ज्यादा वेरिएशन ही सिर्फ आ सकते हैं. इससे बियॉन्ड अगर आ गए तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लेंदी बन सकता है एंड दैट श्योरली शुड नॉट बी आस्क्ड फॉर 4 to 5 मार्क्स. वो ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए. लेकिन हमारा लिमिटेशंस है क्वेश्चन ड्राफ्टिंग के वक्त, तो वेरिएशन सिर्फ इतने ही आ सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है. ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो हम ट्यूब सेशन में सॉल्व करते हैं एंड सम एडिशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज for B1 and B2. Today we'll solve all of these problems on Z transformation. For B3 and B4, tomorrow we will be solving that transformations, all the problems on the Z transformation. And for lecture for tomorrow, we will be starting with the inverse Z transformation. Okay? Okay, so well in advance, before your MT, we are trying to complete our all 3 units. MCQ practice for first 2 units is over. इस यूनिट की MCQ practice भी हम ले लेंगे so that prior to MTE आपकी अच्छे से practice along with all types of questions हो जाएगी and you will be very sure for the MTE for applied mathematics. So don't worry at all for applied mathematics. We will be conducting that very smoothly. However, other situations. Okay, yeah, let me take your attendance and we'll stop for today. I'm sorry. Just wait a couple of minutes. Yeah. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.